Hello, my kids, my lovely kids. How are you? Are you enjoying the Python? The topic agenda is looping statement. What is a looping statement? We will discuss that. And first topic is while in the looping statement. Second topic is for in this. And next one is nested loop. And with some examples, we will discuss all these things. Okay, so the first syntax of while. Note down in your notebook, this is the syntax of while. While, then you have to write the condition and then give the statements, and this indentation should be there. आपने if का स्टेटमेंट भी देखा था, यहाँ पर while की जगह पर सिर्फ if था, यहाँ पर while लगा है. अब while में और if में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन while एंड if? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, अगेन आई एम पहले हिंदी में बोल रहा हूं, बाद में इंग्लिश में भी बोलूंगा. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये सभी स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होंगे, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे, एक लूप बनाएंगे, रिपीट करेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी. while का मतलब ही जब तक होता है, ठीक है. until, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. नाउ आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश. while this condition is true, this statement execute repeatedly and more times while that condition is true. जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कर्सर बाहर आ जाएगा आउट ऑफ दैट लूप. ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हाउ दैट वर्क. एक एग्जांपल देखते हैं. आई वांट टू डिस्प्ले प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. आई वांट टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. सो आई हैव टू राइट दिस प्रोग्राम लाइक दैट. सबसे पहले आप क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 1 लिखा. आप सब इस प्रोग्राम को अपने स्क्रिप्ट मोड में इडली के अंदर लिखेंगे. मैं अभी आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा. आई विल शो द डेमो ऑल्सो. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन शुड बी दैट a इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड लाइन शुड बी दैट while a लेस देन इक्वल्स टू 10. द कंडीशन इज ट्रू. राइट नाउ कंडीशन इज ट्रू. Then go to there, print a. The a will be print. ठीक है. After that we have write that a plus plus. ये आपको पता है इंडेंटेशन चल रहा है. जब तक ये इंडेंटेशन चलेगा तब तक ये while चलेगा. That means condition true, these both statement will be execute. The output will be this, program will be this 1 2 3 4 5 6 10. अपने आप ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे सिर्फ ये 3-4 लाइनें लिखने से. Only 4 lines, it will give you the following output. It will give you the following output. Now learn how this working. इसकी प्रोसेस को अब समझेंगे. That a equals to 1. Now check that condition. The condition is true. The program comes to that print a. So the a will be print. The a is now 1. That will be display 1. Okay. After that we have given a plus equals to 1. That means 1 has been added to a. तो a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. Now a will be 2 and that will be back to there. That will be back to there. Again it will ask to check the condition. Now condition is true or false. The condition is true now. So come to that place and again print a. So a, now a is 2. So the 2 will be displayed there. Okay. Again it will increase the a. Now again 1 has been added to a, and after completion this statement it will again go to that place and ask to check that condition again. So what is a is less than 10, then come to this part. Now it will also print the a. Now a is 3, the 3 will be displayed there. So repeatedly that program will be execute up to 10 times, and that will be print all the numbers from this
program. So up to 10. When we print 10, after completing printing 10, it will come to there. Now it will be 11. When it will be 11, it again goes to there and asks to check the condition. Now A is 11 and condition is less than 10. So that will not go inside the loop. It will get out from the loop or program will terminate there. So that's why these numbers are display on the screen. ठीक है. So आपको यहाँ पर A equals to 1 लिखा है, यहाँ पर if की जगह पर हमने while लिखा है. I think आप सबको समझ में आ गया है. Again I am repeating this process in the Hindi. मैं यही प्रोसेस दोबारा से हिंदी में बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश में थोड़े से वीक है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 लेंगे. 1 लेने के बाद जैसे ही while स्टेटमेंट आएगा, while स्टेटमेंट में हम a लेस देन 10 चेक करेंगे. अगर a लेस देन 10 है, करेक्ट है, ये कंडीशन ट्रू है. ऑब्वियसली a 1 है और a 1 जो है 10 से छोटा है, तो कंडीशन इज ट्रू. सो हेयर कम टू देयर, ये अपने आप अंदर आ जाएगा और अंदर आने के बाद प्रिंट करेगा a को. नाउ a इज 1, तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा. उसके बाद a प्लस इक्वल्स टू 1, a को फिर दोबारा से हम 1 के अंदर ऐड कर देंगे, 1 को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन इट विल गोज टू देयर. यहाँ पर फिर दोबारा से वापस आएगा और यहाँ पर आकर फिर दोबारा चेक करेगा क्या a अभी भी 10 से छोटा है. हाँ, अगर छोटा है तो फिर अंदर आएगा और a को प्रिंट कर देगा. जैसे ही a प्रिंट होगा तो a क्या प्रिंट होगा, 2, क्योंकि a हो चुका है 2. ठीक है. फिर a के अंदर एक और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. a कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा. 3 होने के बाद फिर दोबारा से ऊपर जाएगा और दोबारा से जाके चेक करेगा क्या a लेस देन 10 है. यस, दिस इज द रिपीटेड लूप अप टू द 10 टाइम्स. जब तक a 10 से बड़ा नहीं होगा तब तक ये सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, बार बार चलते रहेंगे. ये दोनों स्टेटमेंट तब तक चलते रहेंगे जब तक a 10 से बड़ा नहीं हो जाएगा. जब तक a 10 से छोटा रहेगा ये चलते रहेंगे. जैसे ही a की वैल्यू 10 से अबव हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये आउट हो जाएगा लूप से. ठीक है. शायद आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आया है. इफ यू आर गेटिंग मी करेक्टली देन सेंड द मैसेज यस आई गॉट दैट. और ये अननेसेसरी मैसेज मत करें. डोंट सेंड अननेसेसरी मैसेज ऑन द कमेंट्स. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग यू? क्या ये लूप समझ में आ गया है? वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ रहा है. जिसको भी समझ में नहीं आया है, इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप फिर दोबारा से समझ जाओगे. आई विल गिव यू द अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो. आई थिंक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो यू विल गेट इट अगेन. आई एम गिविंग यू द अनदर एग्जाम्पल. ओके. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड. 2-3 बच्चों को समझ में नहीं आया अभी भी. वेरी गुड. 2-3 स्टूडेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आया. सम पीपल आर नॉट गेटिंग वेल. ओके, नो प्रॉब्लम. आई एम गिविंग यू द अनदर एग्जाम्पल. Now check the another example. I am giving you another example. Here I am also same program is there. Same program को डिस्प्ले करना है इस फॉर्मेट में. अब किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है? पहला प्रोग्राम हमने डिस्प्ले किया था इस फॉर्मेट में. अब अगला प्रोग्राम हम डिस्प्ले कर रहे हैं इस फॉर्मेट में. तो सेम प्रोग्राम करना है, लेकिन क्या चेंजेस करूंगा मैं देखते हैं. यहाँ पर देखिए, आई हैव टेकन a इक्वल्स टू 1. चेक इट अगेन. मैं अभी इसका डेमो भी दिखाऊंगा आपको. एक बार इसे भी चेक कर लो क्योंकि दोनों का डेमो दिखाने वाला हूं मैं आपको. a इक्वल्स टू 10 while a लेस देन इक्वल्स टू 10. जब तक a 10 से छोटा है, right, until a is less than 10. So these two statement will work. यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमने क्या लिखा, एंड
इक्वल्स टू स्पेस, एंड इक्वल्स टू स्पेस। यहाँ प्रिंट तो कराया हमने ए, बट लास्ट में क्या दे दिया, एंड इक्वल्स टू स्पेस। अगर आप ये लिखेंगे तो यू विल गेट द स्पेस इन बिटवीन द डेटा विच इज प्रिंटेड देयर, दैट विल गिव यू द स्पेस बिटवीन द आउटपुट आफ्टर ए, so that will not give you the next line here. So that is the very easy way to print all the numbers in a horizontal order instead of vertical order. Now I am coming to the demo part कि how we will execute that program on the IDLE. So I am coming to the IDLE now. Now I have started that program, new file. This is the new file. I am writing my program in this window. Here I have taken a equals to 1. Okay. Now write the program while and a less than equals to 10. I have to write that. After that you have to write column there. This is the column you have to write there. After column, press the enter. It will come there. That is the indentation part. You don't remove that indentation part as I told you in previous lecture. Indentation part को, इस गैप को रिमूव नहीं करना है, यहीं से लिखना शुरू करना है. Now print A. A को प्रिंट कर दिया, print A. After that again I have write A plus equals to 1. A में एक इंक्रीज कर दिया, 1 increment given to there. So program is completed there. So after that save that program and P1 dot. I have saved that program. Now executing that program using this method. So output is this. Whatever I told you, this is the output which we have run from the program. So output के लिए आपने क्या कोड लिखा है आप समझ रहे हैं, हमने सिंपल ये कोड लिखा है. But when we write after that comma and equals to डबल कोट्स और सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं, डबल कोट्स भी लगा सकते हैं. यहां पर आपको स्पेस देना है, एक स्पेस दे सकते हो, कॉमा दे सकते हो, स्टार दे सकते हो, डैश दे सकते हो, इसकी जगह पर कुछ भी दे सकते हो. अगर आपने यहाँ पर स्पेस दिया तो आपको आउटपुट में स्पेस मिलने वाला है. देखिए मैंने यहाँ पे रन किया तो आउटपुट इज दिस इज द आउटपुट. अगर मैंने यहाँ पर इसके बीच में डैश दिया तो यू विल गेट डैश इन द आउटपुट. देखिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको आउटपुट में डैश दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं डैश. सो आप जिस तरीके से प्रोग्राम में यहाँ पर जो भी एंड में वैल्यू देंगे, हर एक डेटा को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर डेटा आ जाएगा. आप यहाँ पर जो भी कैरेक्टर दोगे, अगर आपने स्टार दे दिया तो इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये स्टार दे देगा. लाइक दैट आई एम रनिंग द प्रोग्राम. सो दिस इज द आउटपुट. स्टार आ गया इसके बीच में, देख रहे हैं आप. नाउ आई एम गिविंग यू द अनदर प्रोग्राम. इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 10 to 1. इफ वी वांट टू राइट प्रोग्राम फ्रॉम 10 to 1, व्हाट शुड विल वी डू. अब मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 1 तक करना होगा तो क्या करेंगे. इनिशियली ये डिस्प्ले हमें करना है 10, 9, 8, 7, 1. पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, 1 to 10 किया था. इन दिस प्रोग्राम वी वांट टू डिस्प्ले द आउटपुट फ्रॉम 10 to 1 in the reverse order. So what will we do? We will start from a equals to 10. Now in while loop we have to write a greater than equals to 1 because condition should be reverse. पहले कंडीशन थी a less than equals to 10, अब कंडीशन आ जाएगी a greater than equals to 1. So condition should be changed there. Now print a similarly which we have written in last program, but we have to decrease the value of a because from 10 to 1 we have to decrease the value by 1. So from starting a to 10 we are going from 10 to 1.
So whatever you want to start, if it is a start point, you should write there. If it is end point, you should write there. तो जो भी स्टार्ट पॉइंट हो वो यहाँ स्टार्ट करेंगे, जो एंड पॉइंट हो वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। इफ वैल्यू इज डिक्रीजिंग, यू शुड डिक्रीज द वैल्यू। इफ वैल्यू इज इंक्रीजिंग, you should increase the value at that place. You should print that value that place. तो इस तरीके से आप कर सकते हो। Now coming to the next point. This is the example. Now give me the comment. What will be the output of this program? What will be the output of this program? Write down on the comment. स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। इफ यू विल नॉट राइट एंड इक्वल टू, तो इट विल बी डिस्प्ले इन वर्टिकल ऑर्डर। अगर आप एंड में एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स नहीं लगाओगे तो इट विल डिस्प्ले आउटपुट इन वर्टिकल ऑर्डर। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? देखिए इसका आउटपुट जो आएगा वो यही आएगा, ATS 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 5 टाइम डिस्प्ले होगा, और वो भी वर्टिकल ऑर्डर में, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड लगाकर इक्वल्स टू स्पेस नहीं दिया है, तो इसलिए ये हॉरिजेंटल नहीं आएगा, वर्टिकल ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा। बिकॉज वी हैव यूजिंग A, बट वी आर नॉट प्रिंटिंग A देयर, we are not printing value of A there, we are printing only ATS there. So ATS will be displayed at 5 times and A will increase there, so A will be increased up to 5 times, so the looping will goes for 5 times and the output will be displayed ATS 5 times in vertical order. Now I am coming to the next program. What will be the output of this program? A equals to 2, A less than equals to 100, and we are printing value of A. So initially that will be print 2, but we are increasing the value of 2. तो 2 का increment कर रहे हैं, तो what will be the output? Please tell me what will be the output there. Yes, so that will display all even numbers from 1 to 100. सभी इवन नंबर्स विल बी प्रिंट देयर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 up to the 100. All numbers will be print because that will be up to the 100. So the loop will be go to the 100. Whatever A is less than 100, it will execute the program and you will get the output from 2 to 100. I will give you the some assignment where this program will be used. Okay. Now I am giving you another program example which you have to learn very carefully. Please think, please concentrate on my program what I am showing you. अब हम एक जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो थोड़ा सा फिर ट्रिकी है. Again it is tricky. देखिए, write a program to print a number, input a number and print it reverse number. अगर हम यहाँ पर 1 2 3 लिखें, 1 3 2 लिखें, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 3 1, ये आंसर आना चाहिए. That will be the output. So program will give you the reverse number. So I am explaining this program to all of you. Please concentrate on that program because it is again tricky. So it will give you the very good logic for our coming program and assignments. So initially I have input a number in A. In A we have input the number, so A will be the number whatever we have input. Now in this R we have taken R equals to 0. Now I have taken this condition there while A not equals to 0. That is the symbol of not equals to. If A not equals to 0, you can also write that if number is greater than 0, you can write also that. You can also use that also.
ग्रेटर देन 0 भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। मैंने जो यूज किया है अभी नॉट इक्वल्स टू 0 यूज किया है। नाउ वी हैव टेकन दैट आउटपुट b इज इक्वल्स टू a मॉडुलस 10। वी हैव टेकन a मॉडुलस 10। आपको पता है b इक्वल्स टू a मॉडुलस 10 करेंगे तो एवरी केस जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलस करते हैं तो क्या आंसर आता है? That will give you the last digit of the number. The last digit of the number will be stored in the b. In the next statement, we are doing that r equals to r into 10. Next statement, I am giving a equals to a double divide. That is the integer division. That will not give you the fraction part. That is the integer division. So we have using that type, and after completing this loop, out of that loop we have display reverse r. So r has been displayed. So that program will give you the output in reverse order, whatever number we will write. So how the program will execute, मैं आपको इस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग समझाता हूँ, इसको ट्रेस करके दिखाता हूँ। जो प्रोसेसिंग अब समझा रहा हूं मैं आपको, वट एवर आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन, दैट इज नोन एज ट्रेसिंग। तो प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव गिवन दैट आउटपुट एंटर एनी नंबर। अब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे द स्टेटमेंट विल बी ऑन द स्क्रीन, एंटर एनी नंबर। सो वी सपोज वी हैव entered 2 3 4। एज्यूम कीजिए हमने ये इनपुट किया। अभी इसका डेमो भी दिखा देंगे आपको, पहले यहां पर आप समझ लीजिए। एंटर एनी नंबर, सो वी हैव एज्यूम यू हैव एंटर्ड द वैल्यू 2 3 4। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 3 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर चेक करेंगे हम, यहां पर दैट प्लेस a इज नॉट इक्वल टू 0। यस, r is 0 there, but a is not equals to 0 because a is 2 3 4। in the next statement यहां पर जब हम आएंगे तो a equals to a मॉडुलस 10, तो b में लास्ट डिजिट आ जाएगा। रिमाइंडर करेंगे तो लास्ट डिजिट आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज 4 फ्रॉम दैट। ठीक है। इन नेक्स्ट पार्ट व्हेन वी राइट दैट r equals to r into 10, r कितना है अभी? r is 0 there। in this 0 the 10 will be multiplied with that 0 into 10, 0 into 10, that will be multiplied and plus 4, it will give you the answer 4. So now r is 4, and next place when we write this statement, that will give you that answer 234 double divide integer division by 10, it will give you the 23, not 23.4। 0.4 को डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा, निकाल देगा। सो व्हेन वी राइट दैट, तो यहां पर आपको आंसर क्या मिलेगा? 23। ठीक है। सो आपको शायद समझ में आ गया होगा, 0 से पहले 10 को मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग द बोर्ड मास, ये मल्टीप्लाई होगा, बाद में 4 ऐड होगा तो आंसर आ गया 4, और a की वैल्यू क्या आ गई? 23। अगेन ये रिपीट करेगा, यहां से दोबारा यहां जाएगा, अगेन इट विल रिपीट दैट पार्ट। सो यहां पर आगे चेक करेगा a नॉट इक्वल्स टू 0, नो, कंडीशन इज ट्रू, तो a is 23 not equals to 0, करेक्ट। इट विल कम इनसाइड दैट लूप, और इनसाइड दैट लूप आकर फिर दोबारा से b को कैलकुलेट करेगा। नाउ b विल बी 23 मॉडुलस 10, द आंसर विल 33, सॉरी, द आंसर विल 3 because now last digit is 3, now last digit is 3, so answer will be 3 and that b। So after that it will again repeat that statement, that will be execute 4। now r will be 4, r यहाँ पर 4 था तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 4 with 10 plus 3, that will give you the 43। okay, and next point, a equals to 23 double divide 10, that will give you the 2। तो अब जब ये कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। Again it will go to the starting part and will again check क्या a less than not equals to 0 है? Yes, a is not equals to 0, a is 2। Again it will come inside the loop and calculate the b। Now b
2 मॉडुलस 10, तो जब 2 है 2 मॉडुलस 10 करेंगे तो ये रिमाइंडर ही रह जाएगा। जब लास्ट डिजिट रह जाता है, लास्ट डिजिट को ही जब आप सिंगल डिजिट रह जाता है, सिंगल डिजिट को आप जब 10 से मॉडुलस करते हो तो यही रिमाइंडर आता है, वही डिजिट रिमाइंडर आ जाता है। तो b इज नाउ 2, ठीक है। सो इन दिस केस नाउ r इज कैलकुलेटेड लाइक दैट। तो r क्या था यहाँ पर, r था 43। नाउ 43 into 10 will be 430, 430 plus 2 will be 432. Again we will go to the a equals to 2 divided by 10, that will be 0. जब हम अब 2 को डिवाइड करेंगे, डबल डिवाइड करेंगे 10 से, that will give you the answer 0. So again it will go up. Now what is the condition? Now a not equals to 0, a is 0 now. So that in this case the program will get out, and that get out the statement will display print reverse r. And what is the value of r? The value of r is 432. Is it reverse of that? Is it reverse of that? Yes, it is the reverse of that number. So that is the process of this program. मैं आपको इस प्रोग्राम का आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, डेमो देने वाला हूँ, जिससे आपको ये थोड़ा और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी था, कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि शायद ये मुझे समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया है दोबारा से इस प्रोग्राम को ट्रेस करेंगे, मेरी वीडियो को दोबारा से बैक करके देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। मैं ये वीडियो आपको दे ही दूंगा, आपको मिल जाएगी। The PPT will be given within 5 minutes after the lecture. Again, I am giving you the demo of that program. Now, coming to the idli, I am coming to the idli there. This is the idli. I have write that a equals to int input enter any number. Now you can write there a not equals to 0, r equals to 0. Here write b is equals to a modulus 10. Next part, r equals to r multiply 10 plus b. Next part, a equals to a double divide 10. Now write print reverse equals to r. So the program is completed. I am going to execute that program. That is the execution. Now it will ask the number, whatever number we will write. I have write 5648. So it will give you the answer 8465. So this is the reverse of that number. आपको ये प्रोग्राम बहुत केयरफुली लिखना है, ध्यान रखिएगा। आपको ये इंडेंटेशन का भी पूरा ध्यान देना है और इस प्रिंट कमांड को इसके नीचे नहीं लिखना, इसे बाहर निकाल कर लिखना है। आउटसाइड द लूप, दैट इज द आउटसाइड द लूप। लूप इतना सा है, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आउटसाइड लूप माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर स्टेटमेंट। दैट फॉर स्टेटमेंट इज वेरी इजी, वेरी similar to the while loop, but it use a single range there. So syntax of for statement is for variable in range. We will use their range. अभी आप सिर्फ यहाँ पर range use करेंगे, इसके बाद हम क्या चीज कैसे करना है we will execute. Now the statement of this loop is should be there. That after the indentation, ठीक है। So for यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा, you should write that variable name, whatever variable is that, in, that is the keyword in,
एंड दैट इज द रेंज। कैसे यूज करना है मैं आपको आगे प्रोग्राम के एग्जाम्पल में समझाने वाला हूं। आइए एक बार दोबारा देखिए। नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। अभी हमने while में प्रोग्राम किया था 1 to 10 किया था, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं 0 to 10 कर रहे हैं। कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 0 to 10। इट विल यूज द फॉर लूप। नाउ द फॉर लूप, here we have used a in range, for a in range 11। ध्यान से देखिए, मैंने जो प्रोग्राम लिखा है ये तो वेरिएबल का नाम है a, ये एक रेंज फंक्शन है, इसके ब्रैकेट में हमने क्या ली वैल्यू 1। हमें आउटपुट करना था 0 से लेकर 10 तक। अब जो हमारे पास रेंज फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली एक एक डिजिट, एक एक वैल्यू इस नंबर में से निकालेगा 11 में से और उसको a के पास पहुंचाएगा। It will send to the value to a and now we are printing a there using and statement, that will be the output। तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जो फॉर लूप में आपको 4 लाइनों में प्रोग्राम करना था, that program is completed within only 2 lines। So the for loop will go dead। I am again explaining in Hindi। अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। for loop थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमें a को इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता, हमारे पास a की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। यहाँ पर जो रेंज लगाया गया है ये एक फंक्शन है। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक एक वैल्यू इस वैल्यू में से निकाल कर देता है, एक एक वैल्यू इस वेरिएबल में से निकाल कर देता है। ये जो वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखा है 11, तो ये 11 को तो एक्सक्लूड कर देगा 0 से लेकर 10 तक। अगर आप काउंट करोगे 0 से लेकर 10 तक तो टोटल 11 वैल्यूज होती हैं। 0 to 10, 0 और 1 2 3 4 5 10 तक टोटल 11 वैल्यू होंगी। तो सबसे पहले ये इनिशियली 0 निकालेगा एंड सेंड टू द ए के पास पहुंचाएगा। फिर जब हम ए को डिस्प्ले कराएंगे तो ये 0 डिस्प्ले करेगा। अगेन जब फिर लूप यहां पर जाएगा, अगली वैल्यू निकलेगी अपने आप 1 निकलेगा। अब की बार क्या निकलेगा 1 और वो ए में जाएगा। ए को फिर प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगली बार अपने आप इसमें से 2 निकलेगा, 2 निकलेगा किस में पहुंचेगा ए में जाएगा और ए को फिर प्रिंट कर दिया जाएगा तो ए प्रिंट हो जाएगा 2। इसी तरीके से इस रेंज जो है ये अपने आप नंबर्स को जनरेट करती है, ऑटोमेटिकली जनरेट करती है। ये ऑटोमेटिकली 0 से जनरेट करता है। तो हमने जो क्वेश्चन किया अभी यहाँ पर, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम 0 to 10। तो यहाँ पे जो डिजिट लिखा जाएगा वो एक बड़ा लिखा जाएगा। इट शुड बी ग्रेटर देन दैट 1। इट शुड बी 1 प्लस दैट। जो लास्ट एंड वैल्यू है उस एंड वैल्यू से एक बड़ा होना चाहिए, +1 होना चाहिए, तभी आप इसके लिए इजीली काम कर सकते हो। बट व्हाट शुड व्हेन, जब हम यहाँ पर 1 to 10 लिखेंगे तो हमें क्या करना है। तो इस प्रोग्राम को अगर आपने समझ लिया है सही से, नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि आज टाइम कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है मेरे पास। Now in this case when we write 1 to 10, इस 1 to 10 को प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर 1,11। तो यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हमेशा +1 करके देना है, ध्यान रखना, एंड पॉइंट +1 करके देना है आपको। इफ इट इज 10 it should be 11, if it is 20 it should be 21, if it is 100 it should be 101। ओके, सो यहाँ पर आपको जो वैल्यू लेनी है एंड वाली वैल्यू ये +1 लेनी है इस रेंज में। ध्यान रखना ये रेंज फंक्शन ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है और इस ए के इस वेरिएबल के पास पहुंचाता है। तो सबसे पहली जो वैल्यू आई है वो क्या आई, यहां से 1, दैट इज द स्टार्टिंग वैल्यू which will be generated by this range। Now we will print that a there, so it will print
फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 1 था, तो ये कहां तक प्रिंट करेगा। पीछे वाले प्रोग्राम में हमने 0 से यूज किया था, 0 से कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ पर एक ही वैल्यू लिखी थी, तो ऑटोमेटिकली कहां से जनरेट हुआ 0 से। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, तो व्हाट विल बी जनरेट, इट विल जनरेट फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो ये आपको करना है इजीली। इस तरीके से आप अगला प्रोग्राम हम देखते हैं, अगर हमें 1 से 100 तक प्रिंट करने हो और वो भी सारे इवन नंबर, तो कैसे प्रिंट करेंगे, दैट विल बी द प्रोग्राम फॉर दैट। स्टार्टिंग किसे लिया हमने 2 को, एंड पॉइंट क्या लिया ये, लेकिन अब इवन नंबर के लिए 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो एक तीसरा नंबर दे दिया, तो यहाँ पर पहला क्या माना जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या माना जाएगा एंड पॉइंट। व्हाट इज दिस स्टेप वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यू वी हैव टू इंक्रीज, तो वी हैव टू इंक्रीज 2, तो यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, फिर 2 + 4 हो जाएगा, फिर इस तरीके से 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। दैट विल डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। So starting value is 1, this is the starting point, this is the end point, it should be 1 plus for the end point, and it is the step value, we will increase the value there। So इसको धीरे धीरे समझेंगे, इस वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये इजीली क्लियर हो पाएगा। एक बार दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट हिंदी अगेन, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, पहला जो वेरिएबल है, पहली जो वैल्यू है इस रेंज में, वो होगी स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपको स्टार्ट करना है। ये है आपका एंड पॉइंट, जो हमेशा +1 लेके चलना है, और ये है स्टेप वैल्यू। यहाँ पर रेंज में 3 आइटम आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 3 आइटम आएंगे, पहला स्टार्टिंग, दूसरा एंडिंग विच शुड बी +1, और तीसरा जो है वो स्टेप वैल्यू है, कितने का इंक्रीमेंट करना है। अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया तो 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन आई एम गिविंग यू द अनदर एग्जांपल, अगर मुझे 10 से 1 तक प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर 10 से 1 प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी 10 और एंड वैल्यू क्या दे दी 0, क्योंकि अब 1 से 1 कम लेके चलना है, और यहाँ पे जो डिक्रीज कर रहे हैं वो क्या करना है -1। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो दैट विल डिस्प्ले द रिवर्स नंबर फ्रॉम 10 to 1। तो इसे आप करके देखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने सिस्टम पे करके देखोगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं डाउट क्लास में सब लोगों को दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप इस वीडियो को देख के दोबारा से रिवाइज कर लेना, पॉज करके चेक करना कैसे कैसे करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट विच शुड बी 10, दैट इज द एंड पॉइंट विच शुड बी 1। तो 1 लेना है तो हमें यहाँ पर एक और कम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिक्रीजिंग क्या करके चल रहे हैं -1। तो यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है वो -1 है। 10 को पहले 1 घटाएंगे, 10 - 1, 9 - 1, 8 - 1, 7 - 1, इट शुड बी 0। तो 0 को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, और उस तरीके से सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये है नेस्टेड लूप, इसे भी थोड़ा समझना है। ये क्लास 4th वाले बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। ये 6th 7th वाले बच्चों को, 8th वाले बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर 4th क्लास के बच्चे या 5th क्लास के बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं तो वो इसे समझ सकते हैं, लेकिन मुझे डाउट है कि 4th क्लास का स्टूडेंट इसे आसानी से शायद समझ पाए। यहाँ पर नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड द लूप। लूप के अंदर लूप हमें अगर यूज करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिखी a = 10। आई वांट टू डिस्प्ले दिस पैटर्न यूजिंग लूपिंग। ये पैटर्न मुझे डिस्प्ले करना है यूजिंग लूपिंग। तो कैसे प्रिंट करेंगे, पहले क्या लिखा है 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है, 1 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 है, 3 3 3 3। हमें यहाँ पर जो चेक करना होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि कितनी रोज हैं। रो कितनी है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, देयर आर 3 रोज। तो हमें ध्यान रखना है 3 रो। तो एक लूप लगाएंगे पहला 3 टाइम्स, क्योंकि लूप कितना लेना है यहाँ पे हम व्हाइल का यूज कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम को मैं फॉर से भी सिखाऊंगा, पहले इसे आप व्हाइल से समझ लीजिए। जस्ट लर्न विद द व्हाइल, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन विद द फॉर ऑल्सो। a = 1 and that is
a लेस देन इक्वल्स टू 3 बिकॉज यहाँ पर कितने रोज कितनी है 3 है, तो फर्स्ट लूप शुड बी 3 टाइम्स. Again we have using b equals to 1 and the b loop should be 4 times because how many columns are there? The columns are 4. तो पहले रोज 3 है तो पहला लूप 3 टाइम्स लाया, कॉलम 4 है तो दूसरा लूप 4 टाइम्स लाया. तो ये लूप इनसाइड द लूप भी आप इस प्रोग्राम को करोगे तो लूपिंग के अंदर लूपिंग भी होगी, तभी आप नेस्टेड लूप कहलाओगे. यहाँ पर अब हमने प्रिंट कर दिया ए प्रिंट करने से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी ए की वैल्यू होगी. उसके बाद b प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया हमने, तो b की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो ये लूप 4 टाइम्स चलेगा. जैसे ही इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देंगे, ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट. ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम को, ये कर्सर को नई लाइन पर लेकर आएगा, न्यू लाइन पर लेकर आएगा. नाउ अब यहाँ पर किस तरीके से वर्कआउट करना है, ध्यान से थोड़ा प्रोसेसिंग समझनी है. ए की वैल्यू इनिशियली क्या है 1 है, जैसी कंडीशन ट्रू होगी अंदर आएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी. फिर बी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो चेक कहां तक करना है, बी इक्वल्स टू 4 तक. प्रिंट किसे करेंगे, ए को, ए क्या था अभी 1 था तो प्रिंट क्या हो जाएगा 1. फिर दोबारा बी को इंक्रीमेंट करेंगे, बी कितना हो जाएगा 2. फिर दोबारा से यहाँ जाएगा इस जगह पर, बी लेस देन 4 है, यस लेस देन 4 है, तो फिर दोबारा से आएगा और ए को प्रिंट कर देगा. ए अभी भी कितना है 1 है, तो फिर दोबारा से 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर दोबारा से b इंक्रीज होगा, दोबारा यहाँ जाएगा 4 के पास. 4 के पास जाने के बाद फिर यहाँ पर अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू है, a को दोबारा प्रिंट कर देगा, a अभी भी 1 है, तो 4 टाइम्स 1 प्रिंट हो जाएगा. क्योंकि ये लूप 4 टाइम्स चलेगा इसीलिए 4 टाइम्स a प्रिंट होगा. जैसे ये लूप, जैसे ही b की वैल्यू 5 होगी ये आउटसाइड द लूप आएगा, और आउटसाइड लूप आने से क्या मिला, इसके अंदर एक स्टेटमेंट अभी कमी है. यहाँ पे आउटसाइड लूप आने से क्या मिला, यहाँ पर न्यू लाइन पे आ गया. उसके बाद क्या मिला, a प्लस इक्वल्स टू 1, a प्लस इक्वल्स टू 1 हो गया, a प्लस इक्वल्स टू 1 हो गया. 1 होने से क्या होगा, फिर दोबारा से यहाँ पे जाएगा a इस जगह पर. अब चेक करेगा क्या a लेस देन 2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो चुकी है. दोबारा से अनसाइड आएगा, कंडीशन ट्रू है, फिर b दोबारा से 1 होगा और b का लूप 4 टाइम्स चलेगा. 4 टाइम्स चलने के बाद यहाँ पर इस प्रोग्राम को दोबारा से ये 4 टाइम प्रिंट करेगा, तो 2 को 4 टाइम्स प्रिंट कर देगा. आपको ये प्रोग्राम एक एक करके ट्रेस करना है, जैसे मैंने पीछे रिवर्स प्रोग्राम को ट्रेस करना सिखाया था. नाउ नेस्टेड लूप में अगर हमें ये प्रोग्राम करना हो तो इसका क्या प्रोग्राम होगा, इसका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. दैट इज अ प्रोग्राम, so that will be display this statement, so that is the output of that program. ठीक है. Now next coming to the that program, अगर हमें ये प्रोग्राम करना हो तो ध्यान दीजिए, हमने पिछली बार जो ए का लूप लगाया था, रो कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4, तो इट शुड बी 4 टाइम्स. ठीक है. और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, पहली रो है, पहली रो में 1 कॉलम है, दूसरी रो में 2 कॉलम है, तीसरी रो में 3 कॉलम है, चौथी रो में 4 कॉलम है. तो ये आपको क्या करना है, बी का लूप ए तक चलाना है. जब भी आपको ट्राइंगल प्रिंट करना हो, इस तरीके की सीरीज प्रिंट करनी हो, तो b लेस देन इक्वल्स टू 1 ए लिखना है आपको. यहाँ पर a क्या है, a इज द प्रीवियस लूप वैल्यू, द प्रीवियस लूप वैल्यू शुड बी देयर एंड दैट प्लेस. ठीक है. तो दैट विल डिस्प्ले द ट्राइंगल एंड डिस्प्ले यूज दैट b इक्वल्स टू एंड प्लस प्लस. तो यहाँ पर इस तरीके से आप करोगे तो आपको बाकी प्रोग्राम सेम रखना है, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने हैं आपको. दैट इज द चेंजेस, इट शुड बी देयर. ठीक है. नाउ अगर आपको ये लूप फॉर लूप से करना हो तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिख दिया है, आप इसको बाद में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे होगा. उसी सेम प्रोग्राम को मैंने फॉर से किया है, इस प्रोग्राम को भी मैंने फोर से किया है. आप इसको ट्रेसिंग करें और समझें. टाइम बहुत कम रह गया है, इसीलिए मैं अब आपसे विदा लूंगा और आप लोगों को ये स्टेटमेंट असाइनमेंट दे रहा हूँ. ये असाइनमेंट आपको करने हैं. ठीक है. दोनों असाइनमेंट हैं. ये जो असाइनमेंट पैटर्न प्रिंट करने का है, ये सिर्फ 6th 7th और 8th क्लास के लिए है, और जो ये असाइनमेंट है ये सभी बच्चे करेंगे. That assignment for all the people and that assignment for 6, 7, 8. तो 6, 7, 8 वाले बच्चे ये भी करेंगे और ये भी करेंगे. That for all student and that for only 6, 7, 8. 6,
7, 8 इन क्लासेस के लिए ये प्रोग्राम किया जाएगा। ठीक है बेटा, दैट इज द यूज ऑफ दैट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस इवनिंग, बाय बाय, गुड बाय।